all, I Kushagra Tiwari, student of National Institute of Mass Communication and Journalism, set up by Vishwa Samvad Education Foundation, welcomes you to this new episode of Achhi Khabar, where we bring you the news that is positive and inspiring. To begin with, the first news we have is from Lucknow, where a 39-year-old Vidushi Vijayvargiya is manning the operation of her family's 160-year-old business of making and selling perfumes, and became the first woman in her lineage to do so. In 2017, she relaunched her family's brand under the name Isaac Fragrances, which sells a variety of handcrafted, vegan and artisanal perfumes. Today, Isaac does not only ships to India, but it also ships internationally, including France, London, Ireland, Australia and the Middle East. Now moving ahead to the next news, from Tamil Nadu, a group of YouTubers from Villupuram launched a food distribution program for the poor and needy across the state during the COVID-19 lockdown. What initially started as a trial run for feeding 20 people has eventually grown up to 100. While all the members of the group are in their 20s, they have been using funds procured from relatives and friends. The chief manager of the channel, Mr. C. Periadarshan, said that they have been feeding over 150 people every day and spend nearly Rs 2,000 on groceries per day. Krishnaveni, a 45-year-old woman who benefited from the program, said that she feels like her lost son is living in these young boys to ensure that she does not starve during the second wave of the pandemic. Moving forward, the team plans to provide dinner as well to the needy. Our third story is about Coimbatore-based single mother Dr. M. Aishwarya, who since 2016 has been part of Coimbatore Parenting Network, an organization that spreads awareness on correct breastfeeding techniques, postpartum depression and the presence of breast milk banks. With an aim to bridge the knowledge gap and fight the taboos, Dr. Aishwarya has been spearheading a campaign about breast milk donation called Youthuli. In the last 4 to 5 years, she has encouraged more than 300 mothers to donate excess breast milk and help the infant without mothers. Through workshop and awareness sessions, Dr. Aishwarya with CPN members help mothers unlearn traditional misconceptions by providing information backed by science and health experts. The organization donates the Coimbatore Medical College Hospital and other banks in the city. Moving ahead in the news, Mr. Rajesh Shah, a farmer from Gujarat, saved a senile tree by making it more fruity. As a mango lover himself, he used a girdling technique to save one 25-year-old mango tree. Under the technique, he removed a complete ring from the bark of the tree, which forced it to grow bigger and sweeter fruits. For his unique technique, he was honored with the Innovative Farmer Award in 2019 by Indian Agriculture Research Institute. Currently, Mr. Shah fathers over 3,000 mango trees with the variety of Alfonso, Payari and Mulgova. Now to continue more on Achhi Khabar, I hand over the show to my colleague Ms. Swati Gaur. थैंक यू कुशाग्र। आइए शुरू करते हैं खेल जगत से। टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अविरत 5वें वर्ष भी अपना स्थान अव्वल बनाए रखा। आईसीसी ने गुरुवार के दिन अपनी टेस्ट रैंकिंग की घोषणा की, जिसमें भारत ने पिछले 4 वर्षों की तरह इस वर्ष भी अपना स्थान अव्वल बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। भारत ने 24 मैचों में से 2,914 पॉइंट पाकर अपने लिए 121 का रेटिंग पॉइंट प्राप्त किया है। द्वितीय क्रमांक पर न्यूजीलैंड ने 120 का रेटिंग पॉइंट 18 मैचों के जरिए 2,166 पॉइंट पाए हैं। पिछले 11 वर्षों के दौरान आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में 7 बार नंबर 1 पर रह चुका है भारत। इस रैंकिंग की घोषणा में आईसीसी द्वारा यह भी बताया गया है कि 2017-18 की रेटिंग लिस्ट को एलिमिनेट किया गया है। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को तीसरे क्रमांक से पीछे धकेलकर अपने लिए तीसरा स्थान सुनिश्चित किया है। वर्ष 2013 के बाद का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाते हुए वेस्टइंडीज ने अंक 2 से बढ़कर 8वें से 6ठे स्थान पर अपना जगह बनाई है। अब बात करते हैं आनंद के नीपाबेन पटेल की, जो ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित बालिकाओं को शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाने का अभियान चला रही हैं। नीपाबेन पटेल और उनके निवेदिता फाउंडेशन ने 130 शालाओं में सेवाकीय कार्य किया है। कोरोना काल में कक्षा 8वीं से शिक्षा छोड़ने वाली बालिकाओं का संपर्क कर 20 से अधिक बालिकाओं की फीस भर के HCA नर्स की तालीम उपलब्ध कराई है। आज वे जिला अस्पताल में नर्सिंग की कार्यवाही कर रही हैं।
ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास मोबाइल न होने से शिक्षक 10 छात्रों को इकट्ठा कर शिक्षा दे रहे हैं। निवेदिता फाउंडेशन 7 सभ्यों से बना है, जिसकी नीपाबेन पटेल चेयरपर्सन है। नीपाबेन ने कहा, मैं संपन्न परिवार से हूँ। 2006 में ग्राम्य शाला की मुलाकात करी, तब उन्हें देखकर छात्रा अपनी दरिद्रता से शर्मिंदा हो गई, जिसकी वजह से उन बच्चों के लिए कुछ खास करना उन्होंने ठान लिया। वैक्सीनेशन में बढ़ोतरी से कोरोना के केंद्र रह चुके यूरोप को मिली प्रतिबंधों से मुक्ति। वैक्सीनेशन की मदद से कोरोना महामारी की रफ्तार धीमी हो रही है। ब्रिटेन में ज्यादातर बस्ती के वैक्सीनेशन हो जाने के बाद अब ब्रिटेन को 17 मई से पूर्णतः अनलॉक किया गया है। हालांकि कुछ जगह पर पाबंदियां रखी गई हैं। यूरोप की बात करें तो 30 में से 20 देश अनलॉक हुए हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस में रेस्टोरेंट और पर्यटन स्थल धीरे धीरे फिर से शुरू किए गए हैं। डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया में 19 मई से रेस्टोरेंट और सिनेमा के साथ खेल संस्थान भी खोली गई हैं, जिसमें नेगेटिव रिपोर्ट की माहिती देनी होगी। वैक्सीनेशन करवा चुके अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक अब ऑस्ट्रेलिया की मुलाकात कर पाएंगे। माता मरीजों के लिए खाना बनाती है और बच्चा उन डिब्बों पर लिखता है, खुश रहिए। कोरोना मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था के कई किस्से सुने हैं हमने। यहाँ सोशल मीडिया पर जालंधर के एक छोटे बच्चे की तस्वीर वायरल हुई है, जिसकी माता कोरोना के मरीजों के लिए निःशुल्क भोजन बनाती है और बच्चा अपनी मासूमियत से उन डिब्बों पर खुश रहिए यह संदेश लिखता है। यह तस्वीर लोगों को काफी भावुक कर दे रही है। अहमदाबाद शहर की नृत्य संस्थान नर्तन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस की 13 नृत्यांगनाओं ने गुरु स्मिता शास्त्री के मार्गदर्शन तहत कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम के परफॉर्मेंस दिए, जिसमें 5 भिन्न भिन्न देश समेत भारत की 130 से अधिक नृत्यांगनाओं ने शास्त्रीय नृत्य का ऑनलाइन परफॉर्मेंस देकर अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस रिकॉर्ड में नर्तन स्कूल ऑफ क्लासिकल डांस की परिंदा, जल्पा, कुशानी, ध्रुवा, प्रशिता, मधुरा और जानवी ने कुचिपुड़ी डांस, जबकि वेणुका, वरीजा, विश्वा, वेदिका और निर्जा ने भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस दिया। अलग अलग शहर की नृत्यांगनाओं ने लगातार 10 घंटे तक कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के 13 परफॉर्मेंस दिए। अमेरिका में बच्चों में कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्साह है। यह कदम से बच्चों को मिल सकती है मैदानों में खेलने की आज़ादी। 15,000 सेंटर पर किशोरावस्था के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। उत्तर कैरोलिना में 400 पीडियाट्रिशियन के साथ हुए करार में पेरेंट्स को बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कैंटिकट में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन तथा स्कूल के बच्चों के लिए सेंटर तक जाने के लिए बस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के स्लॉट बुक करवा रहे हैं। ब्राउन यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डीन आशीष झा के मुताबिक सप्ताह में 1/3 बच्चे को वैक्सीन दी जाएगी। समर कैंप के और स्कूल में वैक्सीनेशन जरूरी कर दिया जाए तो यह अंक और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए आज के इस एपिसोड का अंत करते हैं। हम आपसे फिर से जुड़ेंगे अगले एपिसोड में हमारे सहयोगी छात्रों के जरिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।